আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আপনারা কি রোদ লাগছেন কি? মনে ভাবছি আপনারা রোদে বসে আছেন। সকালে তো রোদটা খুব মিষ্টি লাগছিল, এখন কড়া লাগছে। আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়াল আকিবাতু লিল মুত্তাকিন والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقل ربي زدني علما. نهایت ہی معزز محترم موقر فضیلت الشیخ استاذ گرامی جناب مولانا زکریا شمسی حفظہ اللہ و تعالی، اسٹیج پر موجود ذی وقار علماء کرام، دور و نزدیک سے آئے ہوئے بزرگان دین، مہمانان اعظام، نوجوانان اسلام، پردانشی خواتین، پیاری ماں اور بہنیں، آج 1 فروری سن 2026 عیسوی بروز اتوار بسن پور کے اس مرکز الرشاد تعلیمی کے افتتاحی پروگرام میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ یقیناً بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ ایک شعر یاد آ رہا ہے: اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ میرے بھائیوں، آج مولانا زکریا صاحب، بیت الحق صاحب، ڈاکٹر مستفیض الرحمان صاحب اور آپ سب یہاں جو اکٹھا ہوئے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ اس کی روشنی، اس کی شعائیں پورے علاقے تک پہنچے گی اور اس کا علم عام ہوگا اور لوگ جوق در جوق، گروپ در گروپ جڑتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ شرط یہ ہے: انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر سب سے پہلی روایت اسی کو نقل فرمایا، اور اس لیے نقل فرمایا کہ کوئی حدیث پڑھے تو اس کی شروعات میں اپنی نیت کو خالص کر لے، کوئی حدیث پڑھائے تو اپنی نیت کو خالص کر لے، کوئی دین کی خدمت کرنا چاہے تو اپنی نیت کو خالص کر لے، کوئی ادارہ قائم کرنا چاہے تو نیت کو خالص کر لے، کوئی اپنے بچوں کو پڑھانا چاہے تو نیت کو خالص کر لے، کوئی صدقہ و خیرات کرنا چاہے، نماز پڑھنا چاہے، کچھ بھی کرنا چاہے تو نیت خالص اللہ رب العالمین کی عبادت، اللہ رب العالمین کی خوشنودی، اللہ رب العالمین کو راضی کرنا کر لے۔ اگر ہماری نیت میں کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی اور کھوٹ ہے تو آج وقت ہے کہ اپنی نیت کو پہلے درست کر لیں اور تمام کا تمام کام کاج، تمام کے تمام اعمال، تمام کے تمام امور محض اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ میں سب سے پہلے یہاں کے متحرک ذمہ داروں کو دل کی عمیق گہرائی سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں کے نونہالوں کے لیے، یہاں کے معصوم بچیوں کے لیے تعلیم کی یہ آماجگاہ کی بنیاد رکھی ہے۔ آپ مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ جہاں آپ نے یہاں اس چیز کی بنیاد رکھی ہے، وہیں ہمیں اپنی نیت کو خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنے کی ضرورت ہے۔ আমার বক্তব্যটা আপনারা যদি বুঝতে পারছেন আর ওটাকে যদি আমি তর্জমা করবার চেষ্টা করি আপনারাকে বুঝাবার জন্য, তো আমি যেটাকে কথা বলতে চাচ্ছি ওটা এটা হলো যে আমরা যে কিছু কাজ করি, যা কিছু কাজ করি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে খুশি করবার জন্য করি। আজকে আমরা এখানে এসেছি আল্লাহর জন্য এসেছি, আজকে আমরা বসেছি আল্লাহর জন্য বসেছি, আল্লাহর দ্বীনের জন্য, এই মাদ্রাসার জন্য বসেছি, জেনে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের বসাটাকে কবুল করে নেয়, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সাথে রাজি হয়ে যায়। যে কোনো ইবাদত করো, ওয়া উমিরু ইল্লা লিয়াবুদুল্লাহ মুখলিসিন লাহুদ্দিন, तमाम के तमाम काम काज महज
আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে ইবাদত के लिए होनी, अल्लाह राब्बुल आलमीन की रजा के लिए होनी चाहिए। এটা আমার প্রথম মেসেজ। देखियो इल्म की बड़ी अहमियत है, इल्म की बड़ी कदर कीमत है। लेकिन আমি আসল উর্দু বক্তব্য সবসময়, কিন্তু এখন চেষ্টা করছি আপনারা বাংলাতে বিচে বিচে যেটা বুঝতে পারেন কথাটি। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब इस दुनिया को बनाने का इरादा जाहिर किया फरिश्तों के सामने, जैसे कि हमारे दरमियान अभी फजीलत शेख फहीम अख्तर मदनी उस मंजर को याद दिला रहे थे, तो बहुत सारी बातें हुई अल्लाह और फरिश्तों के बीच में। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वअल्लम आदम अल-अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका फक़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों के सामने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बहुत सारी चीजों का नाम बताया, इल्म दिया। वअल्लम आदम अल-अस्मा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इन चीजों का नाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिखा दिया, बता दिया, पढ़ा दिया। उसके बाद फरिश्तों के सामने पेश किया, फरिश्तों से कहा कि इन चीजों का नाम बताओ। फरिश्तों ने कोई जवाब नहीं दिया, उनके पास जवाब नहीं था। वो कहने लगे क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। আমরা জানি না আয় রব, এটা তো আমরা জানি না, আমরা উত্তর দিতে পারবো না। তারপরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হযরত আদম আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞাসা করলেন। হযরত আদম আলাইহিস সালাম ওই প্রশ্নের উত্তর দিলেন, যেরকম উত্তর দেওয়া হলো अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म फरमाया तमाम फरिश्तों को, ऐ फरिश्तों आदम के लिए तुम लोग सजदा करो। लिहाजा फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए सजदा किया। क्या मालूम हुआ? मालूम ये हुआ कि अगर इल्म हो तो इल्म से फौकियत आती है, बरतरी आती है, मकाम और मर्तबा बुलंद होता है। जहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों के ऊपर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की फौकियत और बरतरी को साबित कर दिया इल्म की बुनियाद पर। इल्म থাকলে আমাদের মাকাম আর মর্তবা বুলন্দ হয়ে যাবে, ইলম না থাকলে জাহালত থাকবে, মাকাম আর মর্তবা হবে না। আজকে আমরা যে এই দুটা কুরসি পেয়েছি এখানে বসে আছি আপনাদের সম্মুখে, কেন আমরা খুব খুবসুরত নাকি? না আমরা খুব ধনী মানুষ? না, আল্লাহ যেটা ইলম দিয়েছে, আমরা যেটা শিক্ষা আর ইলম হাসিল করেছি তার জন্য এটা মাকাম আর মর্তবা আমরা পেয়েছি। আপনারা এখানে বসে আছেন, অনেক বিরাট বিরাট বড় জলসা হচ্ছে, কোটি কোটি মানুষ বসে থাকছে, তার মধ্যে যার পাশে ইলম হবে উঠে এখানে এসে স্টেজে বসবে, দুটা বক্তব্য দিবে, কারণ ইলম। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मौजज़ा का इल्म दिया। फिरौन ने बड़े बड़े जादूगरों को बुलाया और एक दिन मुकाबला रखा, और फिरौन की कोशिश ये थी, उसकी तमन्ना ये थी कि मूसा को लाजवाब कर देंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा, ऐ मूसा इज़हब इला फिरौन, जाओ फिरौन के पास, डरो नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। फिरौन ने जादूगरों से कहा तुम अपना अपना जादू दिखाओ। उन लोगों ने जादू दिखाना शुरू कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म हुआ कि ऐ मूसा तुम्हारे हाथ में जो आसा है, लाठी है, उसको जमीन पे छोड़ दो। वो लाठी जमीन पे छोड़ा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे असलहा बना दिया, और जादूगरों ने जो जादू पेश किया था वो सबको अपने अंदर निगलने लगा। गर्ज ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वो मौजज़ा अता किया था। जादूगरों के पास वो मौजज़ा नहीं था, उनके पास सिर्फ जादू था। नतीजा ये हुआ कि जादूगर ये समझ गए कि इनके पास जो इल्म है ये अल्लाह की तरफ से अता करता इल्म है, ये मौजज़ा है। लिहाजा जादूगर अल्लाह पर ईमान ले आए, मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत और रिसालत पर ईमान ले आए, उनको कबूल कर लिए। क्या मालूम हुआ? मालूम हुआ कि अगर इल्म हो तो इल्म से बरतरी आती है, फौकियत आती है, मकाम और मर्तबा बुलंद होता है। उसके पढ़ने में কথা বলবার চেষ্টা করেন। আপনার একটা ছোট্ট ছেলে মাদ্রাসাতে পড়ছে, এখনো আলিম বনেনি, মওলানা সাহেব বনেনি, কিন্তু দূর থেকে আপনি যদি হাত মারবেন, আপনি দেখছেন যে জামা পিঁধা আছে, পায়জামা পিঁধা আছে, টুপি পিঁধা আছে, দেখে লাগছে কোন মাদ্রাসার এটা তালেবে ইলম, কোন মাদ্রাসার ছাত্র। দূর থেকে আপনি আওয়াজ দিচ্ছেন, এ মওলানা সাহেব, এ মৌলভী সাহেব বলছেন না ছোট্ট ছেলেটাকে,
ছেলেটা আপনাকে জ্ঞান দিচ্ছে, রাগ করছে না, রাগ করে না, ছেলেটা পুরুষ করছে, আমাকে মৌলানা সাহেব করলে, আমাকে মৌলানা সাহেব করলে, আমাকে মৌলভী সাহেব করে হাত মারলে, ওরা আপনার তো আসছে কেন? ওয়ার তরফ, ওই ছেলেটার তরফ ইলমের নিসবত হলো, ইলমের সঙ্গে সঙ্গে, ইলমের সাথে সাথে ছেলেটাকে জুড়ে গেল। আর আপনি নিজের সমাজের সব থেকে বড় জাহিলকে, যে নিজের নাম লিখতে জানে না, আঙুঠা ছাপ, ওকে আপনি হাত মারেন, জাহিল, খুশ হবে, লাঠি দিয়ে আপনাকে তেড়ে বেড়াইবে, হ্যাঁ আমাকে জাহিল করবি, হ্যাঁ কেন আমাকে জাহিল করবি, সব থেকে বড় জাহিল। কিন্তু এতটি জানে যে আমাকে জাহিল করিস না, জিহালাতের নিসবত আমার তরফ করিস না। কি মালুম হলো? মালুম এটা হলো যে ইলম সবাই পছন্দ করে, জিহালাত কেউ পছন্দ করে না। এই ছোট্ট ছেলেটা যেটা এখন আলিম বলেনি, কিন্তু আলিম করে দাও, মৌলানা সাহেব করে দাও, খুশ হয়ে গেছে। আর সব থেকে বড় জাহিলকে জাহিল করে হাত মারো, রাগ করে দিবে, নারাজ করে দিবে, লাঠি নিয়ে তারা বাড়াইবে। মানে হলো ইলমের কদর, ইলমের আহমিয়তটা বোঝা চাই, বোঝা দরকার। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद आप हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सीरत और जिंदगी का मुताला कर लीजिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में डाला हसद की वजह से, और कुएं से निकाल करके मिस्र के बाजार में बेच दिया गया, गुलाम बना, बादशाह के दरबार में रहा, इल्जाम लगा जुलेखा की जानिब से, कैद खाने में डाल दिए गए। और उसके बाद फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे ख्वाब की ताबीर का इल्म अता किया। ख्वाब की ताबीर के इल्म की बरकत से जब उसने बादशाह के ख्वाब की ताबीर की वजाहत कर दी, बड़े बड़े ख्वाब की ताबीर बताने वाले लाजवाब हो गए, किसी ने उस ख्वाब की ताबीर नहीं बता सकी। बादशाह ने ख्वाब में देखा कि 7 किस्म के हरी बालियां है और गाय उस बालियों को खा रहा है, कोई उस ख्वाब की ताबीर नहीं बता सका। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से अता करदा ख्वाब की ताबीर से ख्वाब की ताबीर बताया। क्या मालूम हुआ? इस इल्म की बरकत से, ख्वाब की ताबीर के इल्म की बरकत से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद खाने से न सिर्फ आजाद किए गए, बल्कि मिस्र के खजाने के मालिक और निगरान मुकर्रर किए गए। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जिम्मेदारी मिली कि 7 साल के 7 साल कैसे गुजारे जाएंगे। गर्ज ये कि ये इल्म की बरकत, इल्म का मकाम और मर्तबा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद खाने से बाहर निकले और मिस्र के खजाना और गल्ला के निगरान और मालिक मुकर्रर हुए। भाइयों, बुजुर्गों, जरूरत इस बात की है कि हम और आप इस इल्म की कदर कीमत को समझें। बातें बहुत सारी हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मैंने शुरू किया, मूसा अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम। अब आइए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्लाम में सबसे पहली वही जो नाज़िल हुई वो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़िए उस रब के नाम से जिस रब ने तुम्हें पैदा किया। इस्लाम की बुनियाद इक़रा, पढ़ाई से। जबकि इस्लाम जिस वक्त आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल की उम्र में नबूवत और रिसालत मिली, पहली वही नाज़िल हुई। क्या उस वक्त अरब के अंदर और दूसरी बुराइयां नहीं थी? शराब पीते थे, जुए में लगते थे, कत्लो गारत गिरी किया करते थे, ज़िना में मुलव्विस रहा करते थे, सूदखोरी किया करते थे, आपस में लड़ाई भिड़ाई में मुलव्विस रहा करते थे। कौन सी ऐसी बुराई नहीं थी जो उनके अंदर नहीं थी? हर तरह की बुराइयां मौजूद थी। लेकिन अल्लाह ने सबसे पहली वही में ये नहीं कहा कि शराब मत पियो, जुआ मत खेलो, ज़िना मत करो, सूद मत खाओ, नमाज पढ़ना शुरू कर दो। नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले जिस चीज का हुक्म दिया है वो है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। उस रब के नाम से पढ़ो जिस रब ने तुम्हें पैदा किया। पढ़ाई का हुक्म दिया, पहला लफ्ज़ इक़रा, पढ़ो, शिक्षा हासिल करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम की अहमियत के पेश नजर जंग बदर के मौके पर बदरी कैदी काफिर की तरफ से जो आए थे वो कैद कर लिए गए। मुसलमानों ने कैदियों को कैद किया। अब अगर फिक्र होने लगा कि इनके साथ कैसा सलूक किया जाए, क्या किया जाए, मशवरा हुआ। मदनी जिंदगी के अंदर
صحابہ اکرام کو اسلحہ کی ضرورت تھی، صحابہ اکرام بھوکے تھے، کھانے کی ضرورت تھی، صحابہ اکرام کے بدن میں کپڑا نہیں تھا، کپڑوں کی ضرورت تھی، درہم و دینار اور پیسوں کی ضرورت تھی، بہت ساری چیزوں کی ضرورت تھی، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدری قیدیوں کو حکم کیا کہ تم میں سے جو پڑھے لکھے ہیں وہ پڑھے لکھے ہمارے 10 صحابی کو 10 لوگوں کو پڑھا دے۔ কিসের দরকার ছিল? খাবার দরকার, কাপড়ের দরকার, টাকা পয়সার দরকার, কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওইটা সব চিজকে সাইডে ধুয়ে আদেশ দিলেন, হুকুম দিলেন, তোমরা যা যে যে পড়া লেখা আছো আমাদের ছেলে পিলাকে আমাদের সাহাবীকে পড়িয়ে দাও। पढ़ाई की बड़ी अहमियत है, पढ़ाई की बहुत ज्यादा कदर और कीमत है, लिहाजा हम और आप इस चीज को समझें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म फरमाया वक़ुल रब्बी ज़िदनी इल्मा। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कहिए रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा करना। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो दौलत मांग सकते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो रब से कोई और चीज मांग सकते थे, रब ने हुक्म फरमाया कि ऐ मोहम्मद मांगना हो तो इल्म में इजाफा मांगो, इल्म में ज्यादती मांगो। इल्म एक ऐसी चीज है जिसका कोई इहाता नहीं, मांगते चले जाओ, हासिल करते चले जाओ, इल्म हासिल करने की कोई उम्र नहीं। अभी हमारे भाई हजरत शेख जनाब मौलाना सफरुल्लाह फैजी हफिज़हुल्लाह बहुत ही कीमती बातें कह रहे थे कि एक वक्त था लोग सिग्नेचर नहीं करना जानते थे, अंगूठा लगाते थे, फिर पढ़े लिखे हुए सिग्नेचर करने लगे, अब दोबारा फिर अंगूठा में स्कैन होने लगा और उसके बाद फिर आंखों का भी स्कैन होता है। बिल्कुल सही बात है। हम लोग दुबई आना जाना करते हैं, दुबई एयरपोर्ट इतना तरक्की कर लिया है, वहाँ पासपोर्ट की जरूरत नहीं, इमेज आईडी की जरूरत नहीं, बस आप अपने आप को ले जाइए, एक मशीन है, गौर से मशीन को देखिए, मशीन फौरन आपके आंखों को कैच करेगी और कैच करने के बाद उसमें नाम आ जाता है, फोटो आता है, मुस्तफा कमाल अब्दुल रहीम, फोटो भी आ जाता है, गेट खुलता है, अंदर चले जाओ। गेट अगर नहीं खुला मतलब आंख मैच नहीं हुआ, वापस जाओ, फिर आपको दूसरी तरफ इमिग्रेशन की तरफ जाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि जमाना काफी तरक्की कर गया है, इल्म हासिल करके और आप इल्म हासिल करने से पीछे हैं, और हमारे समाज और माशरे को इल्म से आरास्ता करने के लिए, इल्म से रोशनास करने के लिए ये इसकी बुनियाद रखी गई है। तावर तक़वा, नेकी के काम में एक दूसरे का ताउन करें, हाथ बटाएं, साथ दें। मेरा এদিকে এসো তোমরা, ছেলেরা এদিকে এসো, তোমাদের সঙ্গে আমি দুটো গল্প করবো, এদিকে এসো, এদিকে এসো, সব মেয়ে ছেলে এদিকে এসো। तावर तक़वा, नेकी के काम में एक दूसरे का ताउन करो। मौलाना ज़करिया साहब ने नेक नियति के साथ, इखलास के साथ यहाँ पर इल्म के लिए इसकी बुनियाद रखी है। हमारा और आपका काम है साथ देना, हमारा आपका काम है उनकी कदम से कदम मिला करके उनका साथ देना, इसको आगे बढ़ाना। हम और आप अगर इसको आगे बढ़ाने के लिए साथ देते हैं, यकीनन सवाब में शरीक होंगे और हम लोगों को क़यामत के दिन इसका अजर और सवाब मिलता रहेगा। लेकिन समाज और माशरे के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नेगेटिव सोच रखते हैं, शैतान वसवसा डालता है, আসছে কি করছে, কতদিন এলো, হিসাব দিলে না, কিরকম করে চলবে, চালাইতে দিব না, এরকম যেন না হয়, ওরকম যেন না হয়, বাধা ডালবার জন্য মেলে মানুষ সামনে চলে আসছে। কাজ করাটা খুব কঠিন, কুয়া বানাটা খুব কঠিন, ওই কুয়ার পানিটাতে জবর ফেলে দাও তো কুয়াটা শেষ করাটা খুব আসান। मेरे भाइयों बुजुर्गों, अल्लाह के मर्द मुजाहिद बंदे ने ये आज़म के साथ इसकी शुरुआत की है। हमारा और आपका फरीज़ा बनता है तावन अल बिर्र व तक़वा, नेकी के काम में एक दूसरे का ताउन करो, साथ दो, जो बन पाए जैसा बन पाए उसका साथ दो। मशवरा दे सकते हो, अच्छा मशवरा दो, शरीक रह सकते हो, साथ दो, दान कर सकते हो, दान करो, कुछ नहीं कर सकते हो, बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजो, वो भी नहीं कर सकते हो, मुखालिफत नहीं करो, दुश्मनी नहीं करो, दिन का काम है। अच्छा करेंगे मौलाना ज़करिया साहब और उनकी टीम, अल्लाह के यहाँ सवाब पाएंगे। बुरा करेंगे, अल्लाह के यहाँ यौमुल जज़ा के दिन वो जवाब देंगे। हम अल्लाह नहीं है,
ہم اور آپ کسی کے دل کے بھید کو جانتے نہیں ہیں. ہم لوگ محاسبہ نہیں کریں گے. ہم لوگ کسی کی دشمنی دین کے کام میں نہیں کریں گے. کوئی دین کا کام کر رہا ساتھ دو. اللہ شفق قلب کو باتیں تو بہت ساری یاد آ رہی ہے لیکن وقت نہیں کہ میں ساری کی ساری باتوں کی طرف جاؤں. اے میرا چھلرا تمہارا آئی کے مدرسہ تو پڑھ گا کہ پڑھ گا ہاتھ پڑھو تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ. কিরকম পড়বে যখন মন আসবে মন হবে তখন পড়তে চলে আসবে আর পরে কাজের সময় কাজ করতে চলে যাবে না সব দিনই পড়বে. মাশাআল্লাহ সব দিন পড়তে হবে. মাদ্রাসা এসে হাজির হতে হবে. শিক্ষকরা যেটা পড়াইবে মনে ধুতে হবে. গैर হাজিরি করতে হবে না. আর গার্জেনের দায়িত্ব হবে যে এই মাদ্রাসাতে নিজের ছেলে মেয়েকে পাঠিয়ে জ্ঞান শিক্ষা ওনাদেরকে হাসিল করাও. যে গैर হাজির থাকলে ওনারাকে হাজির করবার চেষ্টা করো. আমার বাংলা ভাষা খুব সুন্দর নয় কিন্তু চেষ্টা করলাম যে একটা কথা আপনাদের সম্মুখে রাখবার. এই কথাতেই আমি নিজের বক্তব্যকে শেষ করছি. আল্লাহ রাব্বুল আলামিন से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस इदारे को खूब दिन दुगनी रात चौगुनी खैर और बरकत और तरक्की अता फरमाए. यहाँ के जिम्मेदारों को मजीद मेहनत इखलास के साथ करने की तौफीक अता फरमाए. अल्लाह रब्बुल आलमीन इस इदारे को लहलहाता हुआ एक बड़ा सा इदारा बनाए और हम सबको इसमें साथ देने हिस्सा लेने ताउन करने की तौफीक अता फरमाए. अल्लाह रब्बुल आलमीन हर किस्म के शर से इसको महफूज रखे. अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने बच्चों को सही दीनी दुनियावी तालीम और सही तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए. आमीन. अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब के छोटे बड़े नेक अमाल को कबूल फरमाए. गलतियों गुनाहों को सगायर कबायर को माफ फरमाए. सयाद को हसनात में तब्दील फरमाए और आखिरी कलमा ज़ुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह जारी फरमाए. मरने के बाद जन्नतुल फिरदौस में प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाक़त में आला मक़ाम आला मरतबा अता फरमाए. आमीन. रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम. आमीन. वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.